Hello students, today's topic is geometry. In geometry, we have know many concepts, okay? But regarding NSCGS and pre-RMO, यहाँ पर मैं कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग हम बाद में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. क्लियर? So main concepts, okay? First is polygon. Polygon. You must know about everything about a polygon. Just like first point, the sum of all interior angles of a n-sided polygon. This is equal to n minus 2 into 180. N minus 2 into 180. Second, the sum of all exterior angles of a n-sided polygon is always 360 degree. Okay. Next point. When we talk about regular polygon, then we can calculate each interior angle and each exterior angle also. Each interior angle of n-sided regular polygon is equal to रेगुलर पॉलीगॉन्स में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सभी इक्वल होते हैं, ठीक है? तो ये जो टोटल सम है यहाँ पर n साइडेड है तो n ही इंटीरियर एंगल्स होंगे. जैसे हम ट्राइंगल्स की बात करें, दे आर 3 साइड्स, देन दे आर 3 इंटीरियर एंगल्स, तो हम उन्हें इक्वली डिवाइड करेंगे. मीन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड, n minus 2 into 180. Similarly, in case of exterior angle, each exterior angle of n-sided polygon, अब मैं यहाँ पर वो नहीं लिख रहा हूँ, that will be 360 upon n. Okay, this is about n-sided regular polygon. Clear? And one more thing, this is a fifth point. Number of diagonals in n-sided polygon is always n into n minus 3 upon 2. ओके, तो पॉलीगॉन से रिलेटेड हमें 5 कॉन्सेप्ट ये याद रखने हैं. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, each interior angle and each exterior angle in case of regular polygon, and number of diagonals. Okay.
नाउ द नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, हमें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स मालूम है। ओके, प्रीवियस क्लासेस में हम कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, देयर आर 5 क्राइटेरियाज: SSS, SAS, S, ASA, AAS, and RHS. These are 5 criteria to prove two triangles congruent. Okay, तो मैं यहाँ पर इस पर भी कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक ना। You know about exterior angle property, ठीक। Now write down some inequality relations in a triangle. ओके, हमें इक्वालिटी तो हमने कई बार प्रूव किया, बट देयर आर सम इनइक्वालिटी रिलेशंस दैट एग्जिस्ट इन अ ट्रायंगल। गॉट इट? नो, लेट दिस इज अ triangle A, B, C, and let BC is A, AC, length of AC is B। एक्चुअल में जो वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड हम उसी नेम से इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। Okay, C, and let this of AB is C। Clear? Okay. Then first concept. Sum of any two sides is greater than third side। Okay. Sum of two sides में आप क्या ले सकते हो? A plus B greater than C। Okay. Or if we take B and C, then B plus C will be greater than A. Okay. And next, A plus C will be greater than B। This is a very compulsory condition for to form a triangles। ठीक है, अगर आपको 3 साइड्स गिवन है, आपको ट्राइंगल फॉर्म करना है, तो पहले ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है तो आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, द डिफरेंस, अभी हमने सम की बात की थी, डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स is less than third side। ओके, तो जहां पर सम की बात की थी, सम ग्रेटर देन थर्ड साइड होता था, लेकिन अगर आप डिफरेंस चेक करोगे तो डिफरेंस लेस देन थर्ड साइड होना चाहिए। ओके, और दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए टू फॉर्म अ ट्राइंगल। ओके, राइट, a minus b, यहाँ मॉड साइन लेंगे, we don't know a is greater than or b is, b minus c must be less than a, मॉड साइन। ओके, क्योंकि हमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करनी है। And last one, a minus b, b minus c, and c minus a will be less than b। Okay, then
थर्ड पॉइंट, अगर साइड अनइक्वल्स है, ओके, तो जो उनके अपोजिट एंगल्स होते हैं अनइक्वल साइड्स के, उनमें भी सेम रिलेशंस रहता है। इफ two sides of two sides of a triangle are unequal, okay, then the longer side has greater angle opposite to it, ओके, तो जो साइड बड़ी होगी उसके अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा। लेट इफ AB is greater than AC, let AB is greater than AC, then angle opposite to AB is C and angle opposite to AC is B, okay, then you got angle C is greater than angle B, is it okay? नेक्स्ट पॉइंट, हमने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा था हाइपोटेन्यूज व्हिच इज द लॉन्गर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इन दैट hypotenuse square is equal to sum of square of other two sides, okay, तो let यहाँ पर हमने माना let A and B, these both sides are less than C, okay, means C यहाँ पर greater side है। First, if A square plus B square is equal to C square, okay, then triangle ABC is an equilateral triangle, sorry, not equilateral, ABC is a right angle triangle, okay, now if A square plus B square is greater than C square, okay, अब यहाँ पर मैं इनइक्वालिटीज की बात कर रहा था, इक्वालिटी तो मालूम है, ठीक, then triangle ABC is an acute triangle, okay, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर if this is less than A square plus B square, then this will be a acute triangle, okay, and third, if you got A square plus B square is less than C square, A square plus B square is less than C square, okay, so triangle ABC कैसा होगा, is an obtuse triangle, is it clear? तो ये कुछ पर्टिकुलर इनइक्वालिटीज थी जो हमें याद रखनी पड़ेगी, क्लियर?
नेक्स्ट थिंग, हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं. नाउ गेट द आइडिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. सिमिलर ट्रायंगल्स. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में हमने पढ़ा था कि वहां पर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं. बट इन सिमिलर ट्रायंगल्स only corresponding angles are equal. Okay, and the ratio between corresponding sides is equal. It means that there are two triangles, triangle ABC and triangle PQR. Okay, they are not same. If triangle ABC similar to, this is a sign of similar, triangle PQR, okay, then corresponding angles means first A, then P, B, then Q, and C, then R. Angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle C is equal to angle R. Okay, and angles equal होंगे, and the ratio between corresponding sides is first to AB, then PQ. AB upon PQ equal to BC upon QR. BC upon QR is equal to AC upon PR. AC upon PR. Okay. AB upon PQ, BC upon QR, AC upon PR. ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज इक्वल होते हैं. क्लियर? और अगर कहीं पर आपको ऐसा मिल रहा है, इन दोनों में कोई एक चीज भी मिल रही है, मीन्स या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है या फिर करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल है, तो आप ये भी कह सकते हो कि दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ओके, तो नाउ यू हैव टू क्राइटेरियाज. यहां से आपको टू क्राइटेरियाज मिल रहे हैं कि अगर कोई टू ट्रायंगल्स हैं उनमें एंगल्स इक्वल हैं. फर्स्ट यू हैव टू चेक एंगल्स. ठीक, और एंगल्स अगर टू एंगल्स इक्वल, एंगल ए इक्वल टू पी एंड बी इक्वल टू क्यू, तो सी और आर ये ऑब्वियस सी बात है कि इक्वल होंगे, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी कि टोटल सम तो 180 होना है. अगर टू एंगल्स इक्वल हो गए तो थर्ड को भी इक्वल ही होना पड़ेगा. क्लियर? एंड सेकंड क्राइटेरिया एक आपको मिला है करस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज. अगर कहीं पर करस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज इक्वल है, ओके, तो आप कह सकते हो कि वो ट्रायंगल्स सिमिलर है. ओके, तो ये जो क्राइटेरिया हमने यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज AA, मींस ट्रिपल ए सिमिलैरिटी. जैसे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के क्राइटेरियाज थे, इसी तरह दिस सिमिलैरिटी इज नोन एज SSS सिमिलैरिटी. ओके, SSS कॉन्ग्रुएंसी में था, साइड्स इक्वल दिखानी है. सिमिलैरिटी में ये है कि आपको इन करस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज को इक्वल शो करना है. अगर ये इक्वल हैं तो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे. There is one another criteria to prove similarity of two triangles, which is SAS similarity.
Okay, now what is SS? Here SS is representing same there S, जो S का यहाँ मतलब था वही S का यहाँ पर मतलब है. ठीक है, means if you finding two corresponding side ratios, means let AB upon PQ is equal to BC upon QR. मुझे थर्ड रेशियो नहीं मालूम है, यहाँ पर मुझे टू रेशियोज ही मालूम है. थर्ड रेशियोज का कोई आइडिया नहीं है, उसकी लेंथ कितनी है. इस केस में आप इन साइड रेशियोज में जो इंक्लूडिंग एंगल है उनको चेक करो. ए बी बी सी, ए बी एंड बी सी, तो इंक्लूडिंग एंगल एंगल बी, पी क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर इंक्लूडिंग एंगल क्यू. अगर ये एंगल्स इक्वल है, ओके, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो हम ऐसे सिमिलरिटी को यूज करते हैं. S A S. That's why AB PQ first S, then angle A, and again sides BC and QR. Okay, so you have three criteria to prove similarities of two triangles: AA similarity, SSS similarity, and SA similarity. Is it clear? Okay. Now, there are some other results which are based on similar triangles. Okay. Now, let's check the relation between medians. Medians of two similar triangles. A, B, C, and P, Q, R. Okay, these are two similar triangles. Triangle ABC similar to triangle PQR. बच्चों अगर ये सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज इक्वल होगा. लेट यहाँ पर हमने मीडियंस ड्रॉ किया, ये है AB, और यहाँ पर हमने मीडियन ड्रॉ किया, लेट दिस इज PS. ओके, तो देखना भाई, we got triangles are similar, then AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. ठीक, BD is half of BC, okay, or we can say BD is equal to 2BC. ठीक, और BC, sorry, BD is half of BC, okay, or you can say BC is equal to twice BD. Similarly here, QS is half of QR, or you can say QR is twice of QS. Clear? तो देखो BC and QR, BC and QR, अगर हम इन टू रिलेशंस को ले बच्चों, तो AB upon PQ is equal to BC upon QR. BC and QR की वैल्यूज को रिप्लेस कर दें, AB upon PQ is equal to twice BD twice QS, 2BD upon 2QS, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या रिलेशन मिला कि AB upon PQ and BD upon QS, ये रेशियो इक्वल है. ओके, इन ट्रायंगल ABD and triangle PQS. ओके, देखो ABD and PQS, AB upon PQ, BD upon QS, ये रिलेशन है आपके पास. AB upon PQ is equal to BD upon QS. ओके, और यहाँ पर एंगल B और एंगल Q,
ये भी तो सेम होंगे क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर थे. ओके, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू. तो अब इन ट्राइंगल्स में देखो, एस ए एस, ए बी बी डी, एस ए एस, पी क्यू, एंगल क्यू, एंड क्यू एस, पी क्यू क्यू एस एंड एंगल क्यू. तो बाय एस एस सिमिलरिटी, देखो यहाँ पर एस एस सिमिलरिटी यूज हो रही है. बाय एस एस सिमिलरिटी दे ट्राइंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर. triangle ABD similar to triangle PQS. और यहां से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है दैट इज AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PS इक्वल टू BD अपॉन QS. AD अपॉन PS, बच्चों ये क्या थी? मीडियंस. ओके, तो सिमिलर ट्राइंगल्स में मीडियंस में भी वही रिलेशन है जो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज होता है. ओके, क्लियर? देन ये चीज हम सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं फॉर एंगल बाइसेक्टर एंड फॉर एल्टीट्यूड आल्सो. मैं यहां पर अब लिख नहीं रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना कि सिमिलर ट्राइंगल्स में रेशियो बिटवीन करस्पॉन्डिंग मीडियंस और रेशियो बिटवीन करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, लाइक दिस इज ए ई एंड ये है टी. ठीक, तो ए ई अपॉन पी टी, इनका रेशियोज भी करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो के इक्वल होगा. ठीक है, सिमिलरली रेशियो बिटवीन करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स. ओके, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है. क्लियर? द नेक्स्ट, अब यहां पर एक थ्योरम है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम known as Thales theorem. Thales theorem, which is also known as basic proportionality theorem, जिसे लोग शॉर्ट में बीपीटी भी कहते हैं. क्या कहते हैं? बीपीटी. ओके, according to this theorem, if we draw a line parallel to a side of triangle, like this is a parallel to side. Okay, like this is a triangle ABC and this parallel line is D. If a line divides other two sides and this line is parallel to a third side, then this line divides other two sides in same ratio or same proportions. Is it clear? Write down a statement. If a line is drawn parallel to a side of triangle, then it divides other two sides in same ratio. Okay, so if BE is parallel to BC, in that case AD upon DB is equal to AE upon BC. ओके, और इन्हीं रिलेशन से हमें कुछ रिलेशंस और भी मिल जाएंगे. जस्ट लाइक ये फर्स्ट है, सेकंड AB मींस हम यहाँ पर कंप्लीट साइड ले रहे हैं, AB upon AD, then this ratio is equal to
AE upon AC upon AE, AC upon A. Okay, and next AB upon BD. That will be equal to AC upon EC. Is it clear? ये रिलेशंस मिलेंगे थेल्स थ्योरम से. गॉट इट? और बच्चों यहां पर ये भी देखो, अगर ये लाइन पैरेलल है, D पैरेलल टू BC, तो एंगल D एंगल B के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड सिमिलरली एंगल E विल बी इक्वल टू एंगल C. ओके, तो जब भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ होती हैं तो ये ट्राइंगल सिमिलरली हो जाते हैं. ट्राइंगल ADE similar to triangle ABC by AAA similarity. ओके, D and E ये BC के इक्वल हो गए, एंगल ये दोनों में कॉमन है, तो वहां से भी आप करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो ले सकते हैं. क्लियर? There are some other results which are based on BPT, just like first result based on BPT, basic proportionality theorem और Thales theorem. फर्स्ट मैं यहाँ पर फिगर बनाता चलो, आप समझते चलो. ABC, okay, let AD is angle bisector. Okay, then AD divides opposite sides in the same ratio as the ratio between sides containing the angle. Containing the angle means angle A. एंगल A को कौन सी साइड्स कंटेन करेगी? AB एंड AC. तो BD एंड DC में वही रेशियो होगा जो AB एंड AC में होता है. BD upon DC is equal to AB upon DC. ओके, इसकी प्रूफ मैं कभी क्लास में प्रॉपर आपको बताऊंगा, अभी आप मेन पॉइंट्स नोट करें. This theorem, this result is also known as interior angle bisector property. Okay. Second, right? This is a triangle ABC और आपने exterior angle bisector draw किया, means ये एंगल इसके इक्वल है. यहाँ पर ये पार्ट इक्वल था, ये है ट्राइंगल ABC. ओके, एंड BC को एक्सटेंड किया तो ये इससे डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके, यहाँ पर AD एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, AD इज एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर. ओके, then again AB upon AC, this equal to, पहले देखो बाइसेक्टर यहाँ पर कट कर रहा था D पर, अब बाइसेक्टर इस पॉइंट पर कर रहा था, तो हमने BD एंड DC लिया था, तो यहाँ भी सिमिलरली BD DC, BD upon DC. तो एंगल बाइसेक्टर वो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, वो अपोजिट साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा एज द रेशियो बिटवीन
sides containing the angle. इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो इंटरनली डिवाइड करेगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा. ओके नेक्स्ट ABC, okay, and D, this is parallel to BC. तो अभी हमने BPT के थ्रू पढ़ा. According to BPT, AD upon DB is equal to AE upon BC. Okay, अगर if let D is midpoint of AB. अगर D midpoint है तो बच्चों AD और DB ये तो इक्वल होंगे, तो AD और DB का रेशियो कितना हो जाएगा 1. ओके, और AD DB AC के इक्वल भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ AE एंड तो यहां से रिलेशन क्या मिलेगा AE इज इक्वल टू AC. क्लियर? दिस इज ऑल्सो नोन एज, देखो यहां पर हमने क्या कहा कि अगर D मिड पॉइंट है AB का और E मिड तो और लाइन पैरेलल है ये, देन E इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC. ठीक है, ये क्लास 9th में हम थ्योरम पढ़ते हैं और इसको वहां पर हम मिड पॉइंट थ्योरम्स के नाम से भी जानते हैं, MPT, मिड पॉइंट थ्योरम. क्लियर? तो बीपीटी पेपर बेस्ड और भी रिजल्ट्स हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए इतना ही. मैं कुछ एक्सरसाइज सेंड करूंगा, आप उसे सॉल्व करिएगा. ओके, बाय बाय.